is to increase the rate of whatever is enclosed in any chemical. The energy can be released by the action of enzyme. So what is enzyme actually? Enzyme is the biocatalyst. What is enzyme? Enzyme is the biocatalyst. अब biocatalyst का word हम use कर रहे हैं. So what do you think? Why I have used this word biocatalyst, biological catalyst? Any idea why I have used this word? Huda, Aisha, please on your video. Iman, you also on your video, beta. अनाबिया तो मुझे सुन ही नहीं रही हैं. इकरान, जोयान. Miss, can I? Yes, Anas, please carry on. Miss, as we know, enzymes perform chemical reactions in our body, and the catalysts all increase the rate of increase the rate of reactions of chemicals in our body. Hmm. Okay. Yes, anyone other want to share any idea about it? उमर. Excuse me, teacher. जी बेटा. Miss, सिस्टम में हमारे कितने chapters होंगे? Only 2 chapters. Miss, they help in digestion. Sorry. Miss, they help in digestion. Enzymes are help in digestion. Yes, enzymes helps in digestion because I have used the word biological catalyst. तो catalyst पहले क्या होता है? Catalyst is the one that affect the rate of reaction. What is catalyst? Catalyst is the one that affect the rate of reaction, whether it accelerate the rate of reaction, increase the rate of reaction, or decrease the rate of reaction. Catalyst क्या होते हैं? Catalyst ऐसे substances होते हैं जो किसी भी reaction को या तो बढ़ा देते हैं या उसके reaction को कम कर देते हैं. ठीक है? What are catalysts? Catalysts are those who increase the rate of reaction or they can decrease the reaction. Lot of noises coming from someone. Let me check. जब मैं बोल रही हूँ तो please I want your mic to be mute, please. Mute your mic while I'm speaking. Okay. So I was talking about catalysts. Catalysts क्या होते हैं? Catalysts are those who can change the rate of reaction, whether they increase it or whether they decrease it. ठीक है? But when we are saying that enzymes are biological catalysts, it means the substance, the catalysts that are used in biological processes. The catalysts which are used in biological processes. अब biological processes से क्या मतलब हो गया? वो processes जो कि जिंदगी, लाइफ से ताल्लुक रखते हैं, लिविंग बीइंग के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो. ठीक है? कोई भी लिविंग बीइंग हो, चाहे वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, अगर उसके अंदर भी एंजाइम की वर्किंग हो रही है तो वो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हो गए. ठीक है? Yes, teacher. तो अब क्या होता है, जो whatever the food we eat, the food contains lot of energy in it. If you take a sugar in a dish, in a small dish, and burn it, what will you see after burning the sugar? It will turn black.
Yeah, it will turn black. Acha, in this process of turning it into black, the burning of sugar actually, what else you people can see? Carbon. Yeah, carbon. The carbon is formed because sugar is mainly composed of carbon dioxide and water. The sugar, sucrose, carbohydrate is one of the form of carbohydrate. Sugar family में से है sucrose. ठीक है, sucrose is the part of sugar family. So when we burn, and because is composed of carbon dioxide and water molecule. So when we burn it, we can see the carbon after burning the sugar. चीनी को जलाया, चीनी को जलाने के बाद हमें वो कालक दिखेगी जो कि कार्बन फॉर्म में रह जाएगी. तो इसके अंदर मौजूद और भी तो चीजें थी, वो क्या हुई, जैसे कि वाटर वेपर्स. तो वो क्या हुआ, वो सारा रिलीज हो गए, वाटर वेपर रिलीज हो गए. फिर जब कोई भी फूड मॉलिक्यूल जो होता है या एनर्जी कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर हिडन एनर्जी भी होती है, एनर्जी भी उसके अंदर मौजूद होती है. तो क्या होता है कि जब बर्निंग होती है तो बर्निंग के अंदर इस जलने के प्रोसेस में क्या होता है, तो वट एवर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इट रिलीजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो यही वजह है कि जब आप उसको जलाते हैं, शुगर को बर्न करते हैं, तो व्हाट यू कैन फील द हीट. And if you measure it with the help of thermometer, you can note down the change in temperature as well. जाहिर सी बात है, हम जबान से तो ऐसे जबानी कलामी ओरली तो ऐसे नहीं बोल सकते भाई हीट एनर्जी रिलीज हुई, हीट एनर्जी रिलीज हुई. जब हम साइंटिफिक वे में कोई चीज परफॉर्म करते हैं तो हमें उसे प्रूव करना होता है. तो फॉर दिस what we can do, we can use a thermometer. Thermometer will help you to note down the change in temperature when you are burning the sugar. You can see on page number 41. Page number 41. It ये तो क्या
Excuse me, teacher. Are you speaking something? Am I audible to you all? Am I audible to you all? Yes, Yes, yes. तो Yes, आप लोग को कब से मेरी आवाज नहीं आ रही थी? काफी देर से हमें तो नहीं पता नहीं। टीचर फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जब से नहीं आ रही है। फिर कट गई। यस मिस, फिर कट गई। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस मिस। यस मिस। ये देखिए पेज नंबर 41 पे मैंने आप लोग को इक्वेशन दिखाई है ये, ठीक है? तो मैंने आप लोगों से कहा कि जब फर्स्ट चैप्टर में रिस्पायरेशन पढ़ा था तो रिस्पायरेशन के अंदर हमने यही सेम इक्वेशन देखी थी। मैंने पेज टर्न करके आप लोगों को चैप्टर 1 में जो रिस्पायरेशन टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एंड वी हैव गॉन थ्रू द इक्वेशन दैट द रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड means releasing energy that is enclosed in the food particle, food substance. तो this equation is same as respiration. तो फिर मैंने आपको बताया जब हमने शुगर को बर्न किया in the presence of air, what we got carbon dioxide, water and plus lot of energy released by burning the sugar. सेम वे हमने ये तो एक स्टेप में किया कि जितनी भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलने से जितनी भी हमें एनर्जी मिलनी थी वो हमने एक ही स्टेप में जलाकर पूरी कर ली, और वट एवर द एनर्जी रिसीव इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। जितनी भी एनर्जी थी वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस्ट हो गई एनवायरमेंट में? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? मिस कैन यू रिपीट प्लीज? हीट। ओके मिस कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ बेटा बता रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग कि व्हेन वी बर्न द कार्बोहाइड्रेट in the presence of oxygen, what happened? Carbon dioxide and water is formed and all the energy which was produced during the process is lost in the form of heat. ठीक है? यस मैम। अब मैंने बात की बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की, तो मैं उससे पहले ये बात बताऊं कि अगर अब हम भी ग्लूकोज की फॉर्म में ही अगर फूड पार्टिकल को इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होती जाती है यहाँ तक के whatever the energy enclosed in that carbohydrate can be received by the action of enzyme. Similarly, just like what we have obtained by burning the carbohydrate. ये जो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिख रहा है इसमें क्या है, एंजाइम्स के एक्शन की वजह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ ही हम एंजाइम्स के एक्शन से क्या हो रहा है कि उस ग्लूकोज के अंदर मौजूद जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता उसमें से रिलीज होती जा रही है, और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे एनर्जी हासिल करते हैं, और फिर ये एनर्जी कहाँ पे यूज होती है? एनर्जी जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने से हासिल करते हैं, वेयर वी यूज दैट एनर्जी?
This is our daily activities. daily activities. Yes, Yes, miss, in in performing performing our actions. yes, in performing actions. And the other thing is that we use this energy in our different like body activities plus the formation of cells, the wearing tearing of cells. आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर तो हर वक्त वेयर एंड टेयर चलता रहता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती रहती है ना। मेटाबॉलिज्म क्या है? न्यू सेल्स का बनना भी और पुराने सेल्स का टूटना भी। जैसे अब ये हमने फूड पार्टिकल की बात की कि जो कार्बोहाइड्रेट था ये भी हमारी बॉडी के अंदर गया, तो फिर क्या हुआ? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट गया। तो मेटाबॉलिज्म इज जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी के अंदर, उन सब के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड पार्टिकल्स के थ्रू। तो सबसे पहले आज हमने जाना दैट व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मेड ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मेड ऑफ प्रोटीन। पेज नंबर 42 पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। They alter the rate of chemical reaction without themselves being chemically changed at the end of reaction. इसका क्या मतलब हुआ कि एंजाइम्स अगर किसी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बनते हैं तो वो खुद कभी भी यूटिलाइज नहीं होते। वो खुद कभी भी यूटिलाइज नहीं होते, वो सिर्फ रिएक्शन का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद वो एज इट इज केमिकल रिएक्शन के बाद मौजूद होते हैं। वो खुद केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होते, मतलब यूज तो होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अगर शुरू में उनका फॉर्मूला ABC था तो एंड ऑफ द रिएक्शन द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, देयर इज नो चेंज इन देम। ओके, so what we got to know about the enzymes, that enzymes are the biological catalyst made up of protein and they alter the rate of reaction without themselves being chemically changed at the end of reaction. ठीक है? केमिकल रिएक्शन में खुद चेंज नहीं होते। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी हुई है पोटेशियम क्लोरेट की। पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, उसको स्ट्रॉन्ग हीट दी गई तो वो किस में चेंज हो गया? पोटेशियम क्लोराइड में, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है ना ये बड़ा स्लोली होता है। इसमें एक तो स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर इसको देना पड़ता है पोटेशियम क्लोरेट को ताकि वो चेंज हो सके, और साथ में ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी और ये रिएक्शन बड़ा स्लो होता है। फिर क्या होता है? तो क्या होता है कि इसके रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए इसके अंदर डाला जाता है ब्लैक मैग्नीज ऑक्साइड। क्या डाला जाता है? what is added in it as a catalyst? Black manganese oxide. yes, black manganese oxide as a catalyst इसमें ऐड किया जाता है। तो इससे क्या होता है? it speed up the rate of reaction. what it does? it speed up the rate of reaction, and because of it the potassium chlorate breaks up into potassium chloride and oxygen is released on much faster rate as before. सिर्फ इसमें मैग्नीज, ब्लैक मैग्नीज ऑक्साइड डालने से क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, पोटेशियम क्लोरेट जो है जल्दी से ब्रेकअप हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड के अंदर, और इससे क्या फायदा होता है? हमें टेम्परेचर भी हमें कम प्रोवाइड करना पड़ता है और ये प्रोसेस जो है ये फास्ट होकर हो जाता है। तो क्या है कि ये जो कैटलिस्ट है
इनको हम लेबोरेटरीज के अंदर भी यूज करते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर यूज होता है। और जो फिर जब यही कैटलिस्ट इन लिविंग बॉडीज यूज हो रहा होता है तो इसे हम कहते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और ये एंजाइम ज्यादातर हमारी बॉडी में कब अपना काम दिखा रहे होते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो व्हाट इज डाइजेशन? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज डाइजेशन? पढ़ चुके हैं वैसे हम चैप्टर 1 के अंदर। Removal of waste products. डाइजेशन बेटा एक्सक्रीशन नहीं पूछा है, डाइजेशन। The breakdown of food. Yes, the breakdown of food, the breakdown of complex organic material into simple form. तो ये simple form में कैसे आते हैं? Simple form में आते हैं by the help of enzymes, by the action of enzymes. तो अब आप लोगों का आज का होमवर्क हो गया है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, What are enzymes? Question number 1. What are enzymes? Explain it with the help of example. ठीक है, what are enzymes and explain with the help of example. Miss, can we write this equation? Yes, you can write it down. मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, am I audible? Yes. Yes. Yes, Miss. Now. Question number 2. Question number 2. Question number 2. Digestion is the process of converting insoluble food particle into soluble food particle. It's a process of Converting insoluble food particles into soluble food particles. Miss, second question, what is digestion है? नहीं, what is digestion नहीं बता रही हूँ मैं आपको। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2, digestion